We'll see life work of Ted Hughes. We'll also see his very first poem. His first poem, Thought Fox. This Thought Fox is very prominent, and critics, they have evaluated this poem, and they admired this poem, Thought Fox. So if you want to compare this poem can be compared with Richard Wilbur Marginalia poem. And then we have another poem like Simasini. So where he gives concept of a poetic process, how we refine our poetry, how poetry occurs to a poet. And the same way, Richard Wilbur say whenever poetry comes to a poet, it is coming in the centrifugal, activity. So centrifugal, it is a concept of physics, and in which ideas are moving away from its center. So like fishes, they are moving to away from the center. Same way, ideas are just moving like a wave, like fishes. They are not just concentrated in one point. So as idea comes, Richard Wilbur say one must write it down, otherwise it will be skipped away. Same way, Ted Hughes say the idea like a poet, idea comes to a poet in the form of the thought fox. It's just like a fox. First it appears in the form, it's just raise its nose, and after that it's getting face, and then eyes, and ultimately whole complete entire fox comes in front of a poet. So it's a metaphorical poem. So foxes can be compared with the idea, because since the poet comparing abstract things with the physical thing, by taking the physical thing he wants to explain ideas are they are abstract, they are not in physical, they are not concrete. So he is giving ideas of internal whatever happening in the mind of the poet. So deep darkness is the imagination of the poets. In the imagination of the poets, what is happening? He is getting idea like a fox. Fox is just getting its nose and eyes and ultimately complete face. The same way idea comes, and now it is coming gradually. He says idea come gradually to the poets. So let's see life of the poets. Please write it down. Ted Hughes, he was born in England. Yorkshire is a place in England that is just like a pastoral area, or just like village area, greenery area, where Ted Hughes influenced from this greenery. So talk about the life of the poet. Poet was born in England, Yorkshire, England. He was born 17 August 1930. 17 अगस्त 1930 में यॉर्कशायर इंग्लैंड की एक प्लेस है जहाँ पैदा हुआ, जो बहुत पेस्टोरल एरिया है, बड़ा ग्रीनरी एरिया है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, पेस्टोरल है, और वहाँ पे ग्रीनरी और बड़ी नेचुरल प्लेस है. ही वॉज बोर्न इन दैट प्लेस जस्ट लाइक अ विलेज. सो विलेज और टाउन लाइक एरिया, यॉर्कशायर एरिया. ही वॉज बोर्न 17 अगस्त 1930. 1930 में पैदा हुआ और 28 अक्टूबर 1998 में डेथ हुई है. टेड ह्यूज की लाइफ में 3 फीमेल आई हैं, प्रोमिनेंट 3 फीमेल्स आई हैं टेड ह्यूज की लाइफ में. सो टेड ह्यूज की लाइफ में 3 फीमेल हैं. 3 females, let me share, I think screen is not shared with you. टेड ह्यूज की लाइफ में 3 फीमेल हैं. एक का नाम है आसिया, एक का नाम है सिल्विया प्लैथ. सिल्विया प्लैथ एक अमेरिकन पोएट्स थी, और वो जब ये पेम्ब्रोक कॉलेज में दोनों मिलते हैं तो वहाँ इन दोनों की फ्रेंडशिप होती है. अल्टीमेटली दे गॉट मैरिड. सो फर्स्ट जो फीमेल है उसकी लाइफ में, उसका नाम है सिल्विया प्लैथ, जो कि एक अमेरिकन पोएट्स थी. सिल्विया प्लैथ से इसके 2 बच्चे होते हैं. एक का नाम होता है नाइकोलस ह्यूज,
नाइकोलस ह्यूज, HUGHES। कहीं पे लिखा होगा ह्यूज लिखा होगा और कहीं पे टेड, बल इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है यही है, टेड ह्यूज। नाइकोलस ह्यूज जो है वो इसका बेटा था। जब सिल्विया प्लैथ खुदकुशी करती हैं, शी कमिटेड सुसाइड। आई विल लेट यू नो द होल लाइफ ऑफ द पोएट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। नाइकोलस ह्यूज और दूसरी है इसकी बेटी है फ्रेडा। फ्रेडा जो हैं वो आज भी वर्क करती हैं, BBC इंग्लिश, BBC पे भी वर्क करती रही हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। लेकिन नाइकोलस ह्यूज ने ही कमिटेड सुसाइड। जब ये 49 ईयर ओल्ड था तो इसने अपनी मदर की तरह इसने भी सुसाइड कमिट कर लिया था। हम अब देखते हैं कि सिल्विया प्लैथ से इसके दो बेटे थे, दो बच्चे थे, एक बच्ची है और एक बच्चा है। एक का नाम नाइकोलस ह्यूज था और एक फ्रीडा। फ्रेडा जो हैं वो अभी भी जिंदा हैं, जबकि जो टेड ह्यूज, जो नाइकोलस ह्यूज है, उसने सुसाइड कमिट कर ली थी। सिल्विया प्लैथ के बाद इसकी लाइफ में एक और इसकी वाइफ है, जो औरत आती है इसकी वाइफ, जो इससे शादी करती है। ये डेविड वेबल एक कैनेडियन पोएट था। डेविड वीवल जो है ये इसका फ्रेंड बनता है। तो इसकी जो वाइफ है उसके साथ इसके इलिजिटिम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होते हैं। ये अक्सर इनके घर आते जाते हैं, तो एक दफ़ा ये इनवाइटेड होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उसका नाम था आसिया वेबल। आसिया वेबल जो हैं ये टेड ह्यूज की तरफ बड़ी अट्रैक्टेड थी। शी वॉज अट्रैक्टेड, शी गॉट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन विद टेड ह्यूज। टेड ह्यूज इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में था। अब जब ये इनवाइटेड होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, डेविड वेबल और आसिया वेबल, तो टेड ह्यूज ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है इसकी तरफ, आसिया की तरफ। आसिया के आगे पीछे फिर रहा होता है। तो सिल्विया प्लैथ उससे भांप लेती है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। सिल्विया प्लैथ उसको मना करती है, दोनों की फाइट होती है और वो तय करता है कि वो आसिया वेबल को कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आसिया वेबल डेविड ह्यूम को छोड़कर अल्टीमेटली शादी कर लेती है टेड ह्यूज से। सिल्विया प्लैथ इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और गैस का जो चूल्हा है उसे वो छोड़ती है, सिलेंडर को, और अल्टीमेटली वहाँ पे सुसाइड को कमिट कर लेती है। अपना वो जो कोई गैस वाला ओवन जो होता है उसके अंदर सर दे देती है और अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड, शी डाइड। और इसी तरह इसका बेटा जो है नाइकोलस ह्यूज, जो है मैंने बताया 49 ईयर ओल्ड था जब उसने भी सुसाइड कमिट की थी। अब तीसरी एक और औरत इसकी लाइफ में आती है। तीन औरतें इसकी जो कि बड़ी यंग होती है, तकरीबन 20 ईयर ओल्ड होती है इसे। तो 3 फीमेल जो हैं इसकी लाइफ में आती हैं। टेड ह्यूज की लाइफ में 3 फीमेल्स जो हैं इसकी लाइफ में आती हैं। उसके बाद टेड ह्यूज के अगर पोइट्री को देखा जाए तो टेड ह्यूज जो है उसे शौक था फिशिंग का, ठीक है। उसे शौक था पिकनिक का, पिकनिक मनाने का, पिकनिक का। उसे शौक था फिशिंग का, पिकनिक का, एनिमल्स का, नेचुरल सीन का। नेचर पोएट भी इसको कहा जाता है। ही इज़ आल्सो कॉल्ड नेचर पोएट। इसको नेचर का पोएट भी कहा जाता है, यानी ये पोएट नेचर पोएट है। ये वायलेंस दिखाता है, ठीक है। वायलेंस और नेचर को डिस्कस करता है, वायलेंस को शो करता है, इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। अभी इसकी कास्टिंग एंड गैदरिंग भी इसकी पढ़ेंगे पोएम, तो काफ़ी अच्छा लिखा है इसने। टेड ह्यूज, ये टेड ह्यूज है, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। सिल्विया प्लैथ इससे बड़ी मुतासर होती है। सिल्विया प्लैथ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में मुब्तला थी। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई बताएगा? सिगमंड फ्राइड ने 2 कॉम्प्लेक्स जो है वो ह्यूमन के अंदर दरियाफ्त किए थे। एक था इडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये होता है कि अगर बेटी जो है, डॉटर जो है, वो फादर की तरफ अट्रैक्शन फील करती है तो उसको उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा था। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है टेड ह्यूज जो है, उसे अपने फादर जैसा लगता था पर्सनैलिटी में,
तो टेड ह्यूज़ की पर्सनालिटी से मुतासर होती है। कॉलेज पेम्ब्रूक कॉलेज है अमेरिका के अंदर, इनकी मुलाकात होती है और वहाँ पे ये अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। टेड ह्यूज़ 1930 में पैदा हुआ है और 1998 में इसकी डेथ हुई है। 1930 में पैदा हुआ है इंग्लैंड के अंदर और 19